السلام جی بھائی یہ بتائیے جو یہ تقلید ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ماننا ہے؟ دین اسلام میں کرنا چاہیے یا ہم کو نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال آپ کو میں اپنی طرف سے بتاؤں گا، حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے بتاؤں گا آپ کو۔ بھائی آپ کو جہاں سے بتانا ہے وہاں سے بتائیے، لیکن ایک کام کریں، اتنے میں نہ کہہ دوں کہ بات میں بتا چکا، آپ اتنے بولیں گے نہیں اصول باندھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ آپ بول لیجیے گا، ایک منٹ ہم بولیں گے۔ اب کوئی آپ کا لیکچر تو ہم سنیں گے نہیں بھائی، کیا آپ ایک گھنٹہ بولتے جا رہے ہو؟ مناظرہ اگر آپ کو رکھنا ہے، مناظرے کا پروگرام یہاں پہ۔ ارے مناظرہ فون پہ نہیں ہوتا بھائی، فون پہ نہیں ہوتا مناظرہ میرے بھائی۔ ابھی یہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ یہاں تشریف لائیں، یہاں بیٹھ کے کریں گے اپنی۔ ہاں تو جب مناظرہ کرنا ہوگا آئیں گے نا انشاءاللہ، اس کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی تو آپ کا میرا بھائی جو کانسیپٹ ہے اس کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو یہ تقلید ہے یہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ صحابہ کرام کے اندر تمام کے تمام حضرات فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، پہلے تو آپ یہ سن لیں۔ اکرام بھائی میرا سوال کیا ہے، آپ ہمیشہ ٹاپک سے بھاگتے ہو، اسی لیے میرے بھائی فالتو کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ اچھا تمہیں چاہیے، پھر تمہیں چاہیے میں یہ پوچھ رہا ہوں جو بھائی جو یہ تقلید ہے، تقلید دین اسلام میں کرنا چاہیے یا نہیں؟ خوش ہوں گے، مطلب صحابہ کے نام سے کیوں مچھلی آ رہی تمہیں؟ میں وہاں سے بتا رہا ہوں بھائی، میں تقلید کی بات کر رہا ہوں نا، تقلید بتائیے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ارے بھائی تقلید کی تو بتا رہا ہوں، یہ ایسے بتائے جاتے ہیں کہ صحابہ تھے، یہ تھے۔ ارے میں آپ سے آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں، تقلید کا آپ کا کیا موقف بتا رہا ہوں؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں، اور چکڑالوی کا بتا رہا کیا میں؟ تو ارے تو پہلے اپنا بتائیے، پھر دلیل کے طور پہ آپ صحابہ کو، اللہ کے نبی کو، قرآن کو لائیے گا، ہم نہیں روکیں گے۔ پہلے اپنا تو واضح کیجئے، آپ کے نزدیک کیا ہے تقلید؟ تقلید کیا ہے؟ تقلید کا مطلب ہے امیٹیشن، انگریزی میں بھی اس کا کوئی نام ہوگا، ایکسپرٹ ایڈوائز کو کہتے ہیں تقلید۔ اچھا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ایڈوائز کو، ماشاء اللہ، ایکسپرٹ ایڈوائز کو آپ نوٹ کر لیں۔ جی جی ماشاء اللہ۔ نہیں کہتے تقلید پوچھنے کو نہیں کہتے، اگر آپ نے پوچھنے کو کہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی سمجھ ہے۔ الحمدللہ، ہاں بتائیے۔ پوچھنے کو بالکل نہیں کہتے، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کرتے ہیں ہم۔ یہ جو ہنس رہے ہیں نا آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی کوئی مائنڈ بنا رکھا آپ کا۔ نہیں آپ کی بھائی جو یہ مطلب جو یہ ہم نے تعریف اور معنی مطلب سنا نا، ایکسپرٹ ایڈوائز، ماشاء اللہ بہت اچھی لگی، دل کو چھو گئی۔ ابھی اسی کو بات کریں گے کہ کون سی ایکسپرٹ ایڈوائز جو ہے وہ آپ کے امام نے آپ کو دی ہے اور آپ اس کو فالو نہیں کرتے ہو۔ ایکسپرٹ والی ایڈوائز ابھی آپ کو بتائیں گے۔ مطلب آپ ایک منافق کے ایسے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایکچوئل مسئلے کا حل چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے میرے بھائی ایکچوئل آپ نے آنسر دیا ہے یا آپ نے میرے بھائی مسئلے کو گھمانے کے لیے آپ نے جواب دیا ہے؟ اب سنیں، میں بتا رہا تقلید کیا ہوتی ہے۔ ابھی سعودی عرب کے اندر مرغوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ کو پتا، دیکھا پھر وہاں بھاگ گئے، اپنا موقف کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ غزل دیکھو، مطلب میں اگر صحابہ کی بات کر رہا ہوں آپ کو وہاں مت آ رہی، میں اگر دلیل مانگوں گا، مثال مانگوں گا تو آپ دیجیے گا نا۔ آپ اپنا تو موقف بتائیے کہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ سنیے، دال سے الٹی آ رہی، ہم کو لگتا ہے کہ آپ پہلی بار بات کر رہے ہیں دینی ٹاپک پہ، آپ کو بات کرنا بھی آتا نہیں ہے۔ سنو تم اس کا مطلب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سنو، کوئی یہودی جیسے میرا نام افو خان ہے، میں یو پی الہ آباد میں رہتا ہوں، میں اہل سنت اہل حدیث جماعت سے ہوں۔ میرے نزدیک جو بھائی تقلید ہے، تمیز نہیں آئی۔ سنو، تقلید کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور دین اسلام میں تقلید میرے بھائی ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اور جو تقلید کرتا ہے وہ اندھا مقلد ہے۔ تقلید کے معنی کے پوجا خوش ہوں گے بھائی، پوجا نہیں، صحیح معنی بتائیے نا جو آپ کو قادروں نے بتایا ہے۔ ارے تو ایکسپرٹ ایڈوائز ہے یار، انگریزی میں بھی تو کوئی نام ہوتا ہے کسی چیز کا۔ ہاں تو مطلب اشرف علی تھانوی نے کیا میرے بھائی اس کی تعریف نہیں کی تقلید کی؟ مطلب یہ ہے اصل میں پتا کیا ہے پھر یار، مجھے آپ کی تعریف نہیں چاہیے، جو آپ کے مطلب تمہاری تعریف کی وہ بتائیے۔ یہ سنو، یہ جو تمہاری کرنی ہے نا، یہاں والوں کو بھگتنی پڑے گی، یہ دھیان رکھیو۔ کیا کرنی پڑے گی؟ یہاں والوں کو بھگتنی پڑے گی، یہ جو تم اس طرح سے مذاقیں کر رہے ہیں۔ میں صحابہ کی زندگی سے بتا رہا تم وہاں نہیں رک رہے۔ نہیں، یہاں والوں کو مطلب بھگتنا مطلب کس کو؟ ارے میں بتا رہا ہوں یار، میری بات سنو پہلے۔ نہیں یار، مطلب دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ کیا کر لیں گے آپ؟ بم پھوڑ دیں گے؟ آتنکوادی ہیں آپ؟ کیا اکھاڑ کیا لیں گے؟ سنو، میں ان سے لوں گا نا جواب، ان سے جواب دوں گا کہ بھائی تمہیں صحابہ ہم سے لیجیے نا، ان سے کن سے میں بھائی، میں ان سے کن سے کسی کو تھوڑی نہ جانتا ہوں، میں بات آپ سے کر رہا ہوں، میرے جواب لو۔
तुम रोटी सालन से तुम्हें नफरत, तुम साहबा से नफरत, रोटी सालन की मिसाल आपके लिए बताइए। आपको असल में दीन के बारे में कोई पूछता है तो आप रोटी सालन पे भाग जाते हो। अरे मेरे भाई, अल्लाह का कलाम मेरे भाई आपके नजदीक खत्म हो गया है, अल्लाह के नबी का फरमान आपके लिए खत्म हो गया है। खंजीर की भी मिसाल दूंगा, मैं तुम्हें सारी मिसाल ले दूंगा, कुरान में है नहीं है, मन्ना सलवा अल्लाह ने खिलाया। अरे तो मैं मिसाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ ना मेरे दादा, क्या अजीब मेरे भाई अजीब कैफियत है आपके दिमाग में। अगर मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ जो है एक्सपर्ट एडवाइस को कहते हैं, मुझे जिस चीज का पता नहीं है कोई मामला, ये आपकी अपनी तारीफ है ना, पहले आप इसको कबूल कीजिए कि ये जो मैं तारीफ बता रहा हूँ, माना बता रहा हूँ, वो मेरी अपना माना है, ये आपका अपना माना है ना। तमाम मुसलमानों की यही तारीफ है, तमाम मुसलमानों की। तो मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे नजदीक जो तारीफ है कि भाई अपने इमाम की अपनी मतलब को मानना, कुरान हदीस का रद्द करना, तो ये तारीफ हो रही है आज के दौर में। आज के दौर में तकलीफ की तारीफ ये है कि अपने मतलब की मानना, अपने बड़ों की मानना, कुरान हदीस का रद्द करना, तो ये तारीफ हो रही है। और आप कह रहे हो एडवाइस की, यही तो मेरी लड़ी ना यार तुम्हारे मतलब। अगर ये तारीफ कहाँ से लेके, मतलब ये तो आप अपनी तारीफ अपनी अकल से मानना बताए दे रहे हो। भैया मैं कह रहा हूँ किसी डिक्शनरी में देख लो यार। कौन सी डिक्शनरी में? अरे किसी हकीम से पूछ लो, किसी से पूछ लो, इमिटेशन मतलब सबसे हम ही पूछ लें, आपने कहाँ पढ़ी, आप हमको बता दीजिए ना। एक बात सुनो, मेरे मतलब खुद नहीं हो रहा, खुद आप पढ़े लिखे नहीं हो मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ यहाँ पढ़ लो, वहाँ पढ़ लो, इससे पूछ लो। मिसाल के तौर पे मैं सजदे में सही नहीं बैठ रहा, सजदे में मिसाल के तौर पे सही नहीं बैठ रहा। अल्लाह के बंदे तकलीफ पे बात हो रही है, पहले इसके ऊपर अपना भाई वो मतलब सजदे से भी दिक्कत, सजदे की मिसाल से भी दिक्कत। मिसाल आप सब दीजिएगा, पहले अपना अकीदा तो बताइए, मौकफ तो बताइए पूरा तकलीफ के ऊपर। भाई तकलीफ एक्सपर्ट एडवाइस को कहते हैं, खत्म हो गई बात। ऐसे कैसे खत्म हो गई भाई? इसका हवाला तो आप देंगे कि कहाँ आपने पढ़ा कि भाई ये एक्सपर्ट एडवाइस को कहते हैं? अंग्रेजी में इमिटेशन लिखा हुआ है, कॉपी करना लिखा हुआ है, किसी कॉपी करना, बात को कॉपी करना लिखा हुआ है। जब तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो थोड़ा इसका वो है भाई। यानी कि इकराम देवबंदी के हिसाब से एक भाई वो नई तारीफ बन गई है तकलीफ की, कॉपी करना। नोट कर ले, इसे नोट कर ले, तुम्हारी मस्जिद में जागी रिकॉर्डिंग, नहीं रिकॉर्डिंग आपकी जाएगी, सहारनपुर में भी फैलेगी। सहारनपुर वाले आपसे इस चीज की मेरे भाई दलील मांगेंगे कि कॉपी करने का नाम है तकलीद, ये कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हारी ये भी जाएगी, हजरत साहबा के नाम से तुम्हें मतली आती है, मैंने नाम लिया, तुम कह रहे वहाँ क्यों पहुँच गए? मतलब कि मेरे भाई बात तकलीफ में हो रही है, किसी भी टॉपिक पे भागोगे तो हम तो रोकेंगे। अच्छा, मतलब अगर मैं कुरान और सुन्नत से टॉपिक से टॉपिक बात करना मेरे भाई, टॉपिक से तुमको भागने में थोड़ी ना देंगे। कहाँ भागने? अरे यार फिर वही चीज आपने कुछ बताया ही नहीं कि भाई तकलीफ का मानना क्या होता है, तकलीफ क्या मेरे भाई लुग़वी माना क्या है, इस्लाही माना क्या है, तकलीफ कहाँ पे आप लोग करते हो, कहाँ पे नहीं करते हो, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। आप तो सीधे सऊदी अरब में क्या होता है, सहाबा क्या करते थे, अरे आप पहले अपना तो बताओ। अच्छा, मतलब मैं अपना कोई अलग से बताऊं ताकि तुम खुश हो जाओ? नहीं, अपना अलग से नहीं, आपके नजदीक तकलीफ क्या है, तकलीफ आप कैसे करते हो, क्यों करते हो, किन किन मसाइल में करते हो? नाम रख रखा है अपना, ये अफू कौन सी किताब से साबित है? अफू अब देखो नाम पे भागे। अच्छा तो अच्छा, मैं कहीं ना नाम पे ना जाओ, अच्छा अमाल पे जाओ, काम पे जाओ भाई। अफू अच्छा, काम तो मुझे क्या पता, आपका नाम ही सही नहीं है। अच्छा कौन से नहीं अफू, अच्छा कौन सी मूर्ति का नाम था, कौन से काफिर का नाम है, कौन से बुद्ध का नाम है, जरा बता दो भाई। तुम नाम कोई नया फैशन चल रहा हो, जैसा अहले हदीस नया चला, आप भी चल रहे हो, मुझे क्या पता। अरे तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भाई इस्लाम कबूल करने से पहले भी तो भाई उमर था, तो क्या हो गया? इस्लाम कबूल करा गया अभी? तुम लोग असल में जब कुछ बचता नहीं है ना तो नाम पे भागने लगते हो, इसीलिए कहते हैं आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। यही आप लोगों की मिसाल हो गई है मुकल्लिद की। असल बात ये है कि और जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, और जो इजमा को ना माने वो दायरे इस्लाम से बाहर है। अच्छा, हम करने को मत लगे, तुम इजमा को कहो तो तुम काफिर नहीं हुए, हम इजमा कहते हैं तो उसको कुफ्र। नहीं तो आपका इजमा तो मेरे भाई चाय के होटल पे हो जाता है ना, अकेले कमरे में बैठ के इजमा हो जाता है कि यहाँ 20 रकात तरावी हो गई तो इजमा हो गया, रफ़ा नहीं करना है तो इजमा हो गया, नाक के नीचे हाथ बांधना है तो इजमा हो गया। आपके वहाँ तो चाय के होटल पे इजमा हो जाता है। बात तो बताइए, आपको बवासीर वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, आपको मेरे भाई खूनी भाई वो पाइल्स होगी, खैर अल्लाह माफ करे, ये सब फालतू बातें हमको नहीं करना है। आप हमें सीरियस बताइए तकलीफ, आप मेरे प्यारे भाई आपके नजदीक भाई तकलीफ क्या है, तकलीफ आप कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, और जो तकलीफ ना करे आप उसको क्या समझते हैं? जब उनकी जिंदगी से मैं तुम्हें तकलीफ बता रहा था, तुमने मुझे क्यों रोका? इसका मतलब सहाबा की जिंदगी से तकलीफ बता रहे थे। हाँ,
साहबा की जिंदगी से। मैं कह रहा था कि सारे साहबा तो मुफ्ती नहीं थे, सारे तो फतवा नहीं दिया करते थे, उनके अंदर तो भाई बात हो रही है तकलीद की, फतवे की बात नहीं हो रही है। अरे वही तो तकलीद है मेरे भाई। लो मुझे पता अभी नहीं है, कॉपी करना तकलीद है, अब कह रहे हो जो फतवा है फतवा तकलीद है। तुम खुद ही कंफ्यूज हो मेरे भाई। असल में आपको भाई जो ये जो भाई तकलीद है ना, उससे भाई आपको तकलीफ हो गई है, तकलीफ से तकलीफ हो गई है आपको। मेरे मौसम पाइल्स है आपको, मुझे लग रहा है भाई यही तो आता है बदतमीजी करना। भाई जब भी आप लोग की दुम पे पैर पड़ता है ना, तो आप लोग मेरे भाई बदकलामी करने लगते हो। मैं आपसे इतनी प्यार से बात कर रहा हूँ, आपको इज्जत दे रहा हूँ, भाई भाई बोल रहा हूँ, और आप एक ही पाइल से क्या पाइल से क्या। आपको साहबा की मिसाल समझ में नहीं आ रही। मैं अरब की भी बता रहा था कि भाई वहाँ पे एक मसला पेश मैं आपसे आपका मौका पूछ रहा हूँ, फिर से कान में तांबे का तेल डाल के सुनिए। आप बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है, इसीलिए मेरे भाई आप एक काम कीजिए, मुंह में जो आपने इंजन ऑयल पी के बात कर रहे हैं पहले उसको थूकिए और सामने वाले की भी सुनिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जो तकलीफ है वो आपके नजदीक क्या है, आप तकलीफ भाई आप मतलब भाई कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, और जो तकलीफ को ना करे आप उसको क्या मानते हैं, पहले इन सवालों का जवाब दीजिए। मिसाल के तौर पे मुझसे सजदा सही नहीं हो रहा, मेरे सजदे में कोई दिक्कत है। अरे मिसाल मैं मांग ही नहीं रहा हूँ, फिर वहीं पे आप भागे। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, जवाब आप क्या दे रहे हैं? मतलब मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, आप पहले हदीस क्यों होना चाह रहे हैं? आप मुझे नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने खाना खाया तो आप भाई हमको बताएंगे कि हाँ मैंने खाना खाया, या आप कहेंगे नहीं मैंने खाना नहीं खाया, या आप कहेंगे नहीं मिसाल के तौर पे मैं रास्ते से जा रहा था। अरे बात खाने की हो रही है तो खाने का भाई आप जवाब देंगे ना। एक तो मिसाल ये होती है बुरी मिसाल, जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई आपको कुत्ते के बच्चे हैं, तो ये तो गलत मिसाल है ना, आपकी तौहीन हो जाएगी। एक मैं मिसाल ये दूंगा कि भाई बैठा हूँ मैं फला काम कर रहा था, ये तो अच्छी मिसाल है ना, आप क्यों उसमें अपने ऊपर ले रहे हैं? तो मिसाल मेरे भाई जहाँ मिसाल का काम होगा वहाँ मिसाल देंगे ना, या जहाँ पे मेरे भाई खाली सीधा जवाब होगा वहाँ पे भी मिसाल आप बीच में डाल देंगे। मैं साहबा की मिसाल आपको दे तो रहा था कि सारे मसाइल के सब लोग। इकराम देवबंदी भाई आप इत्मीनान से सुनिए पहले मेरी बात। आप तकलीफ को क्या मानते हैं? मेरी बात सुनो। मेरा पहला सवाल ये है कि आप तकलीफ को क्या मानते हैं, दूसरा सवाल ये है कि आप तकलीफ भाई आप कैसे करते हैं, और तीसरा सवाल ये है कि तकलीफ आप कहाँ कहाँ पे करते हैं, और चौथा सवाल ये है कि जो तकलीफ ना करे वो आपके नजदीक क्या है। इन 4 सवालों के बिना किसी मेरे भैया मिसाल के आप जवाब दीजिए। जहाँ पे भाई जो मिसाल का काम होगा वहाँ मिसाल दीजिए, लेकिन पहले जवाब दीजिए। वो है कि बंद कर ले मेरे सवाल का, आप अपने सवाल का चारों का जवाब सुने। हाँ। मैं तकलीफ एक्सपर्ट एडवाइस को कहता हूँ। ठीक। मैं तकलीद वहाँ करता हूँ जहाँ मुझे किसी चीज का पता नहीं होता, मैं साहिब इल्म से उस चीज को पूछता हूँ। ठीक। और तकलीद करने वाले को मैं ना काफिर ना जिंदगी ना फासिक कुछ नहीं मानता, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो उस चीज का अहल नहीं है, वो एक्सपर्ट से ही पूछेगा। और बताइए भाई ये तो 3 ही आंसर हुए ना, चौथा बताओ ना। पहला सवाल ये था कि भाई तकलीद आप किसको कहते हैं, तो आपने कहा कि मैं एक्सपर्ट एडवाइस को कहता हूँ। दूसरा सवाल ये था कि तकलीद आप कहाँ पे करते हैं, आपने कहा जो चीज हमको भाई वो मिलती नहीं है वो हम भाई मतलब वो जानकार से हम पूछ लेते हैं। ठीक। तीसरा सवाल था भाई ये कि तकलीद आप कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ मतलब कैसे करते हैं? जो है मेरे पास 4 मकान है, 4 में मुझे बंटवारा करना, अपनी बेटियों के बीच में करना है। ठीक है, मुझे पता नहीं है, अब मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, भाई ये इतना इसका रकबा है, इतना इस मकान का रकबा है, इतना इस मकान का रकबा है, इतने मेरे बच्चे, इतने शादीशुदा, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, इनके हिस्से बांट दिए, खत्म। इस तरह करता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं करता हूँ। अच्छा, एक्सपर्ट ने आपके हिसाब से मुझे मर जाना चाहिए, रसूलुल्लाह से मिल के आऊँ और तब करूँ उसके बंटवारे? नहीं, हमारा तो ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह के अब मेरा सवाल कलाम में जो लिखा हुआ है वो आप कीजिए। आपके लिए अब आपने जो झूठे आंसर दिए हैं अब थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। कुरान में नहीं लिखा। पहला आपने आंसर दिया कि जो तकलीद है वो कहते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। ये बिल्कुल जवाब आपका बिल्कुल मेरे पे गलत है, क्योंकि तकलीद की जो तारीफ है वो आपके हनफी मसलक की है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। तो ये आपने जो अपनी अकल से तकलीद की वो माना ही नहीं है। दूसरा आपने कहा कि तकलीद हम वहाँ करते हैं जो चीज मेरे भाई किताब व सुन्नत से मतलब भाई हमको ना मिल रही हो, वो हम किसी जानकार से भाई हम जाके पूछ लेंगे। तो पूछना भाई तकलीद है नहीं, क्योंकि ये तो अल्लाह सुब्हानो तआला साफ साफ कहता है ना कुरान में कि तुमको जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो, इल्म ना हो, वो अहले जिक्र से पूछ लो। तो पूछना तकलीद थोड़ी ना है, पूछना तो
इल्म हासिल करना है, तालीम हासिल करना है। आपके मतलब से पूजा है, इबादत करना है, तकलीद आपके मतलब से वो बताऊंगा भाई। तकलीद है अंधी पैरवी करना, अंधविश्वास। सुनो, अब मैं किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, ये अंधविश्वास है, तकलीद है। तो ये तकलीद हम नहीं करते हैं। और जो लोग करते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये अंधा मुकल्लिद है। अरे भाई, एक आदमी को बुखार हो गया, वो डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर बुखार मिसालों से मेरे भाई आप लोग मेरे भाई साबित करते हो ना, तो आप लोग के पास कुरान की आयत है, ना ही अल्लाह के नबी की कोई हदीस है, ना ही अमल सहाबा है, डॉक्टर, कंपाउंडर, इंजेक्शन, तकलीफ साबित करते हो। तुम मेरे से पूछोगे कि नमाज कहाँ है, मैं फौरन आयत पढ़ दूंगा, वाक़िमून सलाता व आतू ज़काता, इसमें है सलात और इसमें ज़कात है। आप मेरे से सवाल ही जब एक्सटर्नल अफेयर्स का पूछ रहे हैं। चलिए हम आपसे भाई तकलीफ के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि आपकी तमाम जिंदगी में जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक अभी तक आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा अहम मसला आपको पेश आ गया जिसकी दलील आपको भाई अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी के फरमान में आपको नहीं मिली, और उसमें आपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की भाई मतलब भाई जो उनकी पैरवी थी, तकलीफ थी, उसको अपने ऊपर वाजिब कर लिया। आप हमें एक मसला बता दो ऐसा। और अगर मुझे ना हो ऐसा कोई पेश तो जबरदस्ती बताऊं। नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने एडवाइस ले ली एक्सपर्ट की, और एक्सपर्ट की एडवाइस अगर आप ले रहे हैं तो जिस एक्सपर्ट की ले रहे हैं आप उसके मुकल्लिद हुए ना। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से तो आप जाते नहीं एडवाइस लेने, तो आप हनफी मुकल्लिद कैसे हो गए? जिन्हें जरूरत है उनकी जरूरतों को भी हटा दूं, मतलब मैं सब करा यहीं बैठे रहते। अरे भाई तकलीद आप जिसको भाई आप बोल रहे हैं ना वो एक्चुअल में तकलीफ है ही नहीं। सवाल तो ये है, आप एक बात सुने, आप मुकल्लिद है ही नहीं, आप खुद गैर मुकल्लिद साबित हो गए। आप सुनिए, अभी जिसको तकलीफ कह रहे हैं वो तकलीद है ही नहीं, वो तो इल्म हासिल करना है। अरे भाई आप ऐसे सुनिए, अभी जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जिस चीज का तुमको इल्म नहीं है वो इल्म वालों से पूछ लो, अहले जिक्र से पूछ लो। तो जब आप जाओगे उससे पूछोगे तो इल्म हासिल करोगे ना। तो इल्म हासिल करना तकलीफ थोड़ी ना है। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, किसी पान वाले से आपने पूछ लिया भैया ये फला एड्रेस कहाँ है, तो क्या उस पान वाले की आपने वही तकलीफ कर ली? एक्सपर्ट उसको बना लिया, उसको अपना इमाम बना लिया, मुजतहिद बना लिया। पान वाले का पहले इल्म चेक किया है नहीं, और अपनी मिसाल के रूप से तुम खुद काफिर हो गए। अभी तुमने पान वाले की काफिर हो गए, माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। ऐसी कौन सी हमने घटिया मिसाल आपको दे दी जो काफिर हो गए? अबे भाई यार तुम आपके अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। आप सुबह सुबह मेरे भाई नाश्ते में घोड़े वाले चने खाया करो ताकि दिमाग थोड़ा आपका जोर से चले। अरे भाई ये पाइल्स की दवा मुंह में भी लगाया करो थोड़ी सी। आपने जो इंजन ऑयल पी के रखा है पहले थूकिए उसको साइड में। मैं बता रहा हूँ ना, आपके नजदीक किसी से कोई चीज पूछना यानी कि भाई एक्सपर्ट की एडवाइस भाई वो लेके उसकी मतलब पैरवी करने लग जाना है, उसकी तकलीफ करने लग जाना है। मुंह में भी लगाया करो, मुंह की भी खारिश है। तो वही हम कह रहे हैं कि मानिए आप इलाहाबाद आते हैं, इलाहाबाद में आप हमारे घर के पास आते हैं, आपसे मेरा घर नहीं भाई वो मिलता है। आप किसी रास्ते में किसी पान वाले से, रिक्शे वाले से, दुकान वाले से अगर आप पूछ लेते हैं भाई ये जो मतलब कोई अप्पू खान रहते हैं उनका मकान का है, तो अगर आपने अप्पू खान का एड्रेस पूछ लिया और उसने आपको बता दिया तो क्या आपने उसको अपना इमाम बना लिया? आपने उसकी तकलीफ कर ली? तो आपने दुनिया यार आप पान वाले की मिसाल क्यों दे रहे हैं? अच्छा अभी आप दाल रोटी की मिसाल दे रहे थे, सालन की मिसाल दे रहे थे, सऊदी की मिसाल दे रहे थे, तो वो जायज था। आदमी उल्टी कर रहा है नहीं, अगर आप सऊदी अरब की मिसाल दें, रोटी की मिसाल दें, डॉक्टर की मिसाल दें तो सही है। और हमने अगर आपको पान वाले की मिसाल दे दी या दुकान वाले की मिसाल दे दी तो आपके नजदीक हम काफिर हो गए। तौबा तौबा यार, कितना गंदा कीदा आपका। एक बात सुनिए, एक आदमी उल्टी कर रहा दूसरे का भी तो जी मचला जाता है। अब तुम्हारा जी मचला गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बात सुन के, तुमने कहा था वहाँ की मिसाल छोड़िए, मैंने फिर बैतुल्लाह की मिसाल दी, वहाँ की मिसाल छोड़िए, फिर मैंने जो है डॉक्टर की दी, क्या तुम डॉक्टर की छोड़ी है, तुम पान वाले की दे रहे हैं। पहले हम साबित करेंगे अल्लाह के कलाम से। अरे सुनो, तुमको उसूल भी नहीं पता है। आप काफी अगर कोई इंसान करता है उसको दीन में मेरे भाई हुज्जत मानता है तो तकलीफ करने वाला पहले तो तकलीफ को भाई अल्लाह के कलाम से साबित करेगा, फिर अल्लाह के नबी के फरमान से साबित करेगा, फिर अमल सहाबा से साबित करेगा, तब मेरे भाई साबित होता है ना। आपने ना कुरान पेश किया, ना हदीस पेश किया, ना अमल सहाबा पेश किया, आप सीधे मिसाल देने लगे तो हम आपको रोकेंगे नहीं। तो उससे तुम्हें मतली आ रही है ना। अजीब मेरे भाई बेवकूफ आदमी, मतलब गंदे आदमी हो।
आपसे कम हूँ। आप जो ऐसा है ना, आपके वहाँ मछली आती है ना, तो आपकी बैटरी जेवर में उतरा हुआ है कि हाथ में अगर कोई गंदगी लग जाए तो 3 बार चाटने से पाक हो जाती है। तो आपकी मछली आ रही है, आप 3 बार चाट के उसको पाक कर लीजिए। आज अशरफ अली थानवी का कहना है। जो मोहल्ले वालों से पाइल्स का इलाज वैसे कराते हो ना, वो थोड़ा मुंह में भी कराया करो, आपको थोड़ा सा बोलना आ जाएगा। भाई आपके अशरफ अली थानवी ने आला तनस्सुल अपना भाई वो लंबा करने का जो नुस्खा लिखा है बैश्ती जेवर में, जाके उसके ऊपर अमल कर लीजिए। तुम्हें क्यों डर लग रहा है यार? उससे लंबे को तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तो फिर वही चीज तो अगर आप फालतू बात करेंगे तो फिर हम भी आपकी मसलक की बातें खोलेंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो तुम्हें जब डरना चाहिए वो तुम्हारे सामने। आपकी दुर्रे मुख्तार की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 पे लिखा हुआ है कि रोजे की हालत में अपने हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं। तो आपके यहाँ तो रोजा टूटता ही नहीं है, अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है कि अगर शहवत ज्यादा हो रही तो अपनी बेटी से कर लो। तुम्हारे यहाँ तो ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? हाथ बुरान तुम सादिकीन। चलो हवाला पेश करो। सुनो, तुम्हारे यहाँ ये लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ किताब का नाम बताओ और उसका पेज नंबर बताओ जल्दी तुरंत। उसकी नौबत तो आने दो, नौबत आ गई भाई। एक ही बता दे, अहले हदीस जो बात करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह दलील के साथ करता है। अहले हदीस की हर बात दलील के साथ होती है। जैसे मैंने आपको हवाला दिया है दुर्रे मुख्तार, उसकी जिल्द 1 सफा नंबर 512। अगर आपको ना मिले तो स्कैन हमसे लीजिए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आप भी तो उसका मेरे भाई हमको खुद देंगे रेफरेंस, या ऐसे ही कि आपके घर में लिखा है, आपके घर में लिखा है, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे। पाइल्स का इलाज जो लड़कों से कराते हैं ना, वो थोड़ा सा मुंह में भी करा लिया करें। आपको थोड़ा बोलना का पता लग जाए, क्या बोलना क्या कहना। चलिए कोई बात नहीं। अब हम समझ गए भाई, आपको अपने मसलक का कोई अता पता नहीं है, आप खुद लापता है, आप खाली लोगों के ऊपर भाई भुगतानबाजी करते हैं बस। आप ये कहना चाह रहे हैं से पैदल है अहले हदीस होना, और आपको तो आप तकलीद मेरे भाई करते हैं, वो तकलीद है ही नहीं। बस अब आपके मामला समझ में आया? आप जो तकलीद कर रहे हैं एक्चुअल में वो है ही नहीं तकलीद। तकलीद तो कुछ और है। तकलीद का नाम मैं पूजा रख दूं कि साहब हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पूजा करें, तो ये कहलवाना चाह रहे हैं भाई। आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ताल्लुक से आता है दुर्रे आपकी दुर्रे मुख्तार की जिल्द 1 सफा नंबर 44 से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 55 बार हज किया। एक हज में भाई वो खाने काबा गए और खाने काबा में खड़े होकर एक टांग पे नमाज पढ़ी, एक टांग पे आधा कुरान पढ़ा, दूसरी टांग पे आधा कुरान पढ़ा। क्या मैं इसको पूजा कहूँ? अगर अब मैं इसको पूजा कहूँ? एक टांग पे खड़े होकर कौन सी पूजा हो रही थी? अगर इमाम एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ना साबित है? आपने आज तक पढ़ी अपनी जिंदगी में? क्या दुर्रे मुख्तार यार उसमें नहीं आने का? नहीं, आपने अपनी जिंदगी में एक टांग पे नमाज पढ़ा? दुर्रे मुख्तार इमाम अबू हनीफा की लिखी हुई है क्या? बात यहाँ हाल है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तो कोई एक भी किताब मौजूद नहीं है, लेकिन मसले मसाइल तो उनके नाम से मंसूब है। तुम कितने बड़े, मैं कह रहा फिर पाइल्स का इलाज कराओ। तुम वही तो कह रहे हैं, फूकिए मुंह में और जाके पहले मंजन करके फिर आराम से बात को सुनिए। आपको बहुत अच्छी एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आपने सच्चाई कबूल कर ली कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की खुद की लिखी हुई किताब मौजूद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरी तरफ आप ये कैसे कहते हैं कि हम अपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद कर रहे हैं जब उनकी कोई किताबी मौजूद नहीं है? तो तकलीद क्या मेरे भाई? अब आप ऐसे हवा में कर रहे हैं? नहीं पता आपको, ये भी नहीं पता? नहीं भाई, आपके तकलीद हवा में कर रहे हैं, लिखी भी नहीं है। आपको जब यही नहीं पता, अरे दुर्रे मुख्तार में जो मसले मसाइल हैं वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तरफ भेजे जाते हैं, मंसूब किए जाते हैं। हम कब कह रहे हैं इमाम अबू हनीफा? भाई हमने कब कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने उसको लिखा है? जब हमारा दावा ही नहीं है तो जबरदस्ती हमारे ऊपर बात को क्यों थोपते हो मेरे भाई? बात होगी, मेरा लिखा हुआ चलेगा। अब सबका लिखे की जिम्मेदारी किसको मानते हो आप बता दो? हिदाया को, दुर्रे मुख्तार को, फतावा आलमगीरी को, ततरखानिया को, फिकुल अकबर को, बैसी जेवर को, फजाइल अमाल को, किसको मानते हो आप? किसको मानते हो? कहाँ से तकलीद करते हो भाई? बताओ ना हमको। आप अपने झूठ में फंस गए, आप तकलीद करते नहीं हो। तकलीद आपके नजदीक है एक्सपर्ट एडवाइस, और वो मेरे भाई तकलीद होती नहीं है। किसी भाई एक्सपर्ट के पास जाना, जानकार के पास जाना, उसकी उसके एडवाइस को लेना, ये तो इल्म हासिल करना है, ये तकलीद है ही नहीं। आपको खुद ही नहीं पता तकलीद क्या है। मतलब मैं उसके वो मायने करूँ जिससे आपका दिल खुश हो गया, और आप वो माना कीजिए जो आपके अकाबिरों ने किया है, जो आपके अशरफ अली थानवी ने लोगों को बताया है।
तकलीद उस अमल का नाम है जो किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लिया जाए। ये तकलीद आपने किया सर? वहीं आ रहा हूँ। कब आएंगे मेरे भाई? साइकिल से आ रहे हैं क्या जो अभी तक पहुँच नहीं पाए? जब हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो उस पर भरोसा ही करके जाते हैं कि एक्सपर्ट है, और हम एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो 2 के 3 के 4 के हो गया ना, के पास अंधविश्वास जाएंगे ना तो जूते मारेगा कोई हमें। यही तो अंधविश्वास हो गया ना कि आप किसी के पास जा रहे हैं पहले से सोच के कि नहीं जो ये बताएगा बिल्कुल ठीक बताएगा, अंधविश्वास हो गया ये। तो तुम अंधविश्वास ही नहीं हो रहे, तो हम कैसे अंधविश्वास हो गया? हम तो दलील लेते हैं ना, दुआ नहीं करते। और अल्लाह ताला ने कहा कुरान में कि ए ईमान वालो तुम बिना दलील के बात को मान लो। कौन सी आयत में कहा? बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके उलट फरमाता है, हाथ बुरान तुम सादिकीन, सूरह बकरा आयत नंबर 111 कि लोग उनसे दलील मांगो, अगर वो सच्चे होंगे तो सबूत पेश करेंगे। तो हमें तो दलील लेना है, और अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया, हम लोगों को बुरहान से बसीरत के साथ बुलाते हैं, अंधेपन में उनको नहीं बुलाते हैं कि नहीं हम तो बहुत जानकार हैं, जो हम कह रहे हैं जो हमारी एडवाइस है बात को चुपचाप मान लो। नहीं, ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। आप इनको बुखारी को, मुस्लिम को और इनको सबको क्यों बिना दलील के मानते हैं आप इनको? एक बुखारी शरीफ की मेरे भाई हमको हदीस बता दीजिए जो मेरे भाई एकदम बिना दलील के हो, एक हदीस बता दीजिए। यार मसला ये तो नहीं है, मैं तुम्हारे से कहने लगूं तो कि आप क्या मेरे भाई आप साबित क्या करना चाहते हैं? जब तकलीद आपकी साबित नहीं हो रही है तो आप अल्लाह के नबी की हदीसों पर इल्जाम लगा रहे हैं। और आपके अशरफ अली थानवी साहब ने साफ साफ कहा है कि भाई किताबो सुन्नत की बात को मानना तकलीद नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है आपको? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने मसलक के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, बस आपने अहले हदीसों के बारे में चंद बातें सुन ली है और वही सोच के आप सोचते हैं कि अहले हदीस को गुमराह है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी तकलीद करते हैं भाई, उन्होंने लिखा कि हदीस सही है हम तो उनकी भी मान लेते हैं, हम तो वहाँ भी तकलीद करते हैं। अरे भाई वो तकलीद नहीं है ना, वो तो दलील के साथ है ना भाई। अरे उनकी इमाम बुखारी ने तमाम सनद बताइए ना कि ये रावी है, यहाँ पैदा हुआ है, भाई इसकी कुनियत ये थी, ये भाई सच्चा था, सिखा था, इसका हाफिजा सही था, तो उन्होंने पूरी दलील दी है ना। तो ये तुम्हें अल्लाह ने तुम इसको अंधेपन में मान रहे हो तो तुम अंधविश्वास हो। असल में तुमको इतना अंधविश्वास की आदत हो गई है कि कोई बात दलील के साथ भी होगी तो भी तुम कहोगे नहीं हमको दलील नहीं चाहिए, हम ऐसे मानने को तैयार हैं। तो तुमको आदत हो गई है अंधेपन की। भाई ये तासुब का चश्मा उतारो। ये जो तुम्हें पता है ये 6 हजरात के जो नाम लिए हैं तुम नहीं बताओगे कि तुम्हें रसूलुल्लाह ने कहा था, अल्लाह ने कहा था, इनसे पूछो। भाई ये नहीं बताना। अल्लाह के नबी ने कहीं पे भी नहीं कहा कि बुखारी या मुस्लिम या अबू दाऊद या तिरमिज़ी या नसाई या इब्न माजा की बात को मानो। उन्होंने ये कहा कि मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लो, और जिस तमाम मुहद्दिसीनों ने अल्लाह के नबी की भाई जो भी तालीम थी, हदीसें थी, सुन्नत थी, उसको जमा किया। हम अल्लाह के नबी की बात मानते हैं ना, बुखारी मुस्लिम की उनकी अपनी बात थोड़ी ना मानते हैं घर की। भाई हमें भी अल्लाह ने कहा, नाम लेके नहीं कहा कि तुम जो है फला इमाम मालिक को, इमाम शाफई को मानो। हमें भी अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने नाम लेके तो यही तो कह रहे। तो आपने एक इमाम की तकलीद अपने ऊपर वाजिब कैसे कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह आपने हक कबूल कर दिया। आपने खुद कहा कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इसकी मानो इसकी मानो, तो आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीदें शक्ति अपने ऊपर वाजिब कैसे कर ली? यानी कि ये जो भाई तकलीदें शक्ति है ये मेरे भाई शिर्क साबित हो गई। नहीं, आपने भी तकलीदें शक्ति किसी एक शख्स को दीन में हुज्जत बना लेना, बाकी सबको दीवार पे मार देना, ये शिर्क है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने भी तो ये मान लिया ना कि 6 को हम मानते हैं बिना किसी दलील के मानते हैं। हम 6 को नहीं, हम तो 600 को मान लेंगे। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को दलील के साथ बताएगा हम सबको मानेंगे। हमारा 14 हम बिना दलील के थोड़ी ना किसी को मानेंगे। ये सीना पे सीना इल्म चला रहा है किताबों भाई में। सीना बा सीना वाला इल्म नहीं है हमारा, जो किताबों में इल्म है उसको मानते हैं। ये सीना बा सीना वाला इल्म खाली आप ही लोग अमल करो सूफियों की तरह। नहीं बता सके आप ये सूफिया जो इल्म है ना, जो सीना बाई सीना चला आ रहा है, वो सूफियों का इल्म है। मुफस्सिर कौन से थे, 20 मस्जिदें कौन सी थी, अभी तक भी नहीं बताया आपने। भाई 20 मस्जिद, हम 200 मस्जिद आपको बता दे रहे हैं। पहले हदीसों की बहुत सारी मस्जिद है, लेकिन मस्जिद देख के कोई भाई अरे कोई मस्जिद देख के दीन, अरे कोई मस्जिद में देख के कोई दीन इस्लाम को तो ही न कबूल करता है। वो भाई वो तो दीन इस्लाम की जो अच्छाई होती है, तौहीद होती है, उसको देख के इस्लाम कबूल करता है। ये आप ऐसे जाहिल लोग होते हैं कि तुम्हारी कितनी मस्जिद है, कितने आलिम है, पहले बताओ। ये सब तो बच्चों वाले सवाल हैं। मतलब ना कहीं दीन की दर्स व तदरीस हुआ, ना कहीं मस्जिदों भाई तमाम लाखों सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अकाबिर हैं, हमारे भाई हमारे मुफ्ती हैं, और वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं। तमाम सहाबा इकराम अहले हदीस थे। अहले हदीस तब से हैं जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है।
जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है तब से उसको मानने वाले मौजूद हैं, उनको अहले हदीस कहते हैं। ये बरेलवी देवबंदी कादियानी तो ये तो मेरे भाई बाद में पैदा हुआ, ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहता है, और उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया। तो आपने भी अपने मतलब के आलिमों को अपना अल्लाह बना लिया माज़अल्लाह। अगर वो कहते हैं हलाल है तो हलाल है, हराम है तो हराम है। नवाब अहले हदीस था, ये तमाम। अरे अहले हदीस आप छोड़िए मेरे भाई, आप तकलीफ का आइए ना, आप गलत साबित हो गए ना कि आप तकलीफ करते नहीं हो, आपको धोखा है कि आप तकलीफ कर रहे हो, यानी कि आप मुकल्लिद हो ही नहीं। आपको धोखा है कि आप मुकल्लिद हो, आप तो गैर मुकल्लिद हो। इस दुनिया में कोई मुकल्लिद नहीं है, सब गैर मुकल्लिद है। करते हैं, आपने कहा कि हमको इस दुनिया में कोई गैर मुकल्लिद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुकल्लिद नहीं है, बहुत बढ़िया, सब मुत्तबे सुन्नत है। लेकिन कुछ लोगों को ये धोखा हो गया कि हम मुकल्लिद हैं, एक्चुअल में वो गैर मुकल्लिद हैं। आपके अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो गैर मुकल्लिद थे। अब बताइए, आप गैर मुकल्लिदों को इतना उल्टा सीधा बोलते हो, गालियां देते हो, तो आपके इमाम साहब खुद गैर मुकल्लिद थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, पहले इल्म हासिल कीजिए, आप खुद गैर मुकल्लिद हैं। आप ये तस्लीम कर, इस दुनिया में कोई मुकल्लिद नहीं है, ना ही कोई भाई, ना कोई गैर मुकल्लिद है, ना कोई मुकल्लिद है, सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीनी भाई हैं। उनको मुत्तबे सुन्नत बनना चाहिए, अहले सुन्नत बनना चाहिए, अहले हदीस बनना चाहिए। ये देवबंदी, बरेलवी, कादियानी बन के कोई फायदा नहीं है। नहीं कादियानी, वो तो नाम मिला इस बीच में। अरे क्यों ना ले भाई, उनका भी तो दावा है कि हनफी है भाई। हनफियत के 3 दावेदार है ना, बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, तो हम तो तीनों का नाम लेंगे। मेरी बात सुनो, उनका जब जिक्र चलेगा अपने साथ करना, हमारे साथ मत लो। क्यों मेरे भाई, भाई हनफी आप हैं, एक हनफी की भाई औलादे 3 हैं, एक बरेलवी, एक देवबंदी, एक कादियानी। अब आप तीनों भाई लोग आपस में फैसला कर लो कि असली हनफी है कौन। शैतान की बहुत सारी औलादे हैं, शैतान की बहुत सारी औलादे हैं, जिनमें बरेलवी, देवबंदी, कादियानी की औलादे हैं। हम कब मना कर रहे हैं, हमने इनकार किया क्या? एक दलील आखिरी दे रहा हूँ, तुम्हें आसमान से बता रहा हूँ तकलीद कहाँ से है। अल्लाह ने हुक्म दिया शैतान को सजदा करो आदम के लिए, तमाम ने तकलीद करी, एक दूसरे को देख के सारे सजदे में हो गए। शैतान तकलीद क्यों? माज़अल्लाह, अल्लाह की बात को मानना तकलीद करना है, अल्लाह की बात बिना दलील के? तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे नजदीक तो मेरे भैया अल्लाह की बात दलील है, और जो तमाम फरिश्ते थे उन्होंने अल्लाह की इत्तिबा की, अल्लाह की बात तो खुद दलील है। और तुम कह रहे हो फरिश्तों ने अल्लाह की तकलीद की। तौबा तौबा तौबा, यानी कि अल्लाह की बात बिना दलील है, फरिश्तों ने बिना दलील के अल्लाह की बात मान ली। अल्लाह की बात खुद अपनी जात से दलील नहीं है। तौबा तौबा, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।